हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मुझे जॉर्डन पीटरसन की एक वीडियो मिली है। जॉर्डन पीटरसन, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज के टाइम पे शायद वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, एटलीस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में। um, मैं पर्सनली उनके ज़्यादातर आइडियाज़ से एग्री करता हूँ। आई मीन, आई थिंक मोस्ट आइडियाज़ से एग्री करता हूँ। उनकी एक वीडियो मुझे मिली कि बेस्ट लेसन्स फ्रॉम जॉर्डन पीटरसन। काफ़ी अच्छी एनिमेटेड, और मुझे लगा कि इस पे शेयर करके इस पे बात की जा सकती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो मैं इसे कोशिश करूँगा 2 पार्ट्स में करने की। चलो देखते हैं। बेस्ट लेसन्स लर्न फ्रॉम जॉर्डन बी पीटरसन, एनिमेटेड। ओ, आफ्टर स्कूल, पिक योर सैक्रिफाइसेस। Sacrifice. You get to pick your damn sacrifice. ये बात यार, जिंदगी झंड है, पर कौन सी वाली झंड करवानी है ये तुम्हारे हाथ में। That's all. You don't get to not make one. You're sacrificial whether you want to be or not. This is the Peter Pan story, roughly speaking. Peter Pan is this magical boy. Pan is the god of everything, roughly speaking, right? And so it's not an accident that he has the name Pan. And he's the boy that won't grow up. And he's magical. Well, that's because children are magical. They can be anything. They're nothing but potential. And Peter Pan doesn't want to give that up. Why? Well, he's got some adults around him, but the main adult is Captain Hook. Well, who the hell wants to grow up to be Captain Hook? First of all, you've got a hook. Second, you're a tyrant. And third, you're chased by the dragon of chaos with a clock in its stomach. Right? The crocodile. It's already got a piece of you. अच्छा, ये जो सारी स्टोरी होती है ना, इतनी ज़्यादा मेटाफोरिकल होती हैं कि मतलब, और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो अच्छी तरीके से पीटरसन जो काम करते हैं वो यही है कि वो इन स्टोरीज़ के मेटाफर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहती है स्टोरी। और क्योंकि ये इतने डीप मेटाफोरिकल बेस्ड स्टोरीज होती हैं, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा फेमस होती हैं। ये जैसे पीटर पैन है या पिनोकियो की स्टोरी है, जिसके बारे में अक्सर बात करते होते हैं। हम सब के डीप सबकॉन्शियस में जो चल रहा है उससे ये कितनी ज़्यादा रिलेटेड है ये स्टोरीज। Well, that's what happens when you get older. Time has already got a piece of you. And eventually it's got a taste for you. And eventually it's going to eat you. And so Hook is so traumatized by that he can't help but be a tyrant. And then Peter Pan looks at traumatized Hook and says, well, no, I'm not sacrificing my childhood for that. So that's fine, except he ends up king of the Lost Boys. In Neverland, well, Neverland doesn't exist, and who the hell wants to be king of the Lost Boys? And he also sacrifices the possibility to have a real relationship with a woman, because that's Wendy, right? And she's kind of conservative, middle class, London-dwelling girl. She wants to grow up and have kids and have a life. She accepts her mortality. She accepts her maturity. Peter Pan has to content himself with Tinkerbell. अच्छा, ये जो चीज़ है कि हम पता नहीं और लोग इससे कितना, आई मीन, बेवकूफ़ी वाली बात है। आई थिंक बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। कई बार हम जंप करते ही नहीं हैं ये सोच के कि हम राइट मोमेंट पे जंप करेंगे पॉन्ड में या फिर कहीं पे भी, मेटाफोरिकल जंप। और वो राइट मोमेंट का वेट करते करते ही राइट मोमेंट निकल जाता है, क्योंकि हर अगला मोमेंट हमें लग रहा होता है नहीं, इससे बेटर राइट मोमेंट आएगा। और ये वही चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। She doesn't even exist. She's like the fairy of porn. She doesn't exist. She's the substitute for the real thing. And so, but the dichotomy that you're talking about is very tricky, because there's a sacrificial element in maturation, right? You have to sacrifice the pluripotentiality of childhood for the actuality of a frame. And the question is, well, why would you do that? Well, one reason is it happens to you whether you do it or not. You can either choose your damn limitation. हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है, समाज इस तरीके का है कि ये जो मौका है कि आपको घोंसला छोड़ के जाना पड़ता है, ये आता ही नहीं है बहुत सारे लोगों पे।
क्योंकि अगेन इसके बारे में श्वेता भी काफ़ी बार बात करता है, जो मैंने देखा है। ये एक्चुअली हमारे यहाँ की एक सामाजिक प्रॉब्लम है। जब हम बच्चे होते हैं एज ए बॉय, तो हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखती है, हमारी माँ हमारा ध्यान रखती है, कपड़े धोने से लेके, खाना बनाने से लेके, हर चीज़ का, ठीक है, बर्तन धोने का, हर चीज़ का। खुद की डिशेस भी नहीं, मुझे नहीं लगता बहुत सारे क्या मैक्सिमम लड़के करते होंगे। उसके बाद जैसे शादी के लिए लड़की ढूंढना, हमारे यहाँ कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो नहीं होगा। हर किसी की शादी हो ही जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो कि अगेन जो एक डिज़र्विंग का, जो एक डिज़र्व करने का, एक डिज़र्वनेस बिल्ड करके एक लड़की ढूंढ के फिर उससे शादी करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो जनरल ह्यूमन सिस्टम में रहा है, हमने उसको हटा दिया है। तो यानी कि हर किसी की हो रही है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ लाइक डिज़र्विंगनेस, पता नहीं ये वर्ड है कि नहीं, लेकिन मुझे फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस सही वर्ड है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेंस हर किसी की शादी हो जा रही है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है शादी करने के लिए। नहीं तो होता क्या है, एक चाइल्ड मैन चाइल्ड बन के माँ से बीवी के ऊपर थोप दिया जाता है, फिर उसके वही सारे काम बीवी करती है। वो कभी भी एक प्रॉपर ह्यूमन में ग्रो हो ही नहीं पाता, एक प्रॉपर इंसान जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की भी और अपनी खुद की भी। और ये हमारी, आई थिंक ये टाइम आएगा, और आई मीन आ भी रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने सामाजिक स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा बना लिया है। एनीवे, लेट्स मूव। Or you can let it take you unaware when you're 30, or even worse when you're 40, and then अच्छा, ये हमारे यहाँ नहीं हो पाता। हमें कोई हम अवेयर हो ही नहीं पाते। ये जो टेक यू अनअवेयर होता है ना, तब आप हमें ओ शिट, मैं 30 साल का हो गया और मैंने कुछ नहीं किया, या मैं वो नहीं बन पाया, वो हमारे वहाँ होता ही नहीं है। हमारे वहाँ एक ईजी ट्रांजैक्शन हो जाता है माँ से वाइफ की तरफ। और हाँ, पैसे ज़रूर कमा लेते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट जो देनी होती है, वो आज भी एक जिसे कहेंगे कि सुपर पेट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी में हम रह रहे हैं। और मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मुझे फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी गार्बेज लगती है, लेकिन उसके दूसरे एंड पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है कि हम उनको भी इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस एंड पे प्रॉब्लम है। that is not a happy day. I see people like this, and I think it's more and more common in our culture because people can put off maturity. ये देखो, यही मैं कह रहा था, मॉम लेके आई खाने के लिए, स्टे फॉर एवर, ठीक है। हमारे वहाँ स्टे फॉर एवर हो जाता है, हमारे वहाँ मॉम से वाइफ पे चले गए और वो स्टे फॉर एवर हो गए। Suffering an immediate penalty, but all that happens is the penalty accrues, and then when it finally hits, it just wallops you, because when you're 25, you can be an idiot. It's no problem. Even when you're out in a job search, it's like, well, you don't have any experience and you're kind of clueless. It's yeah, you're young, it's no problem. That's what young people are like, but they're full of potential. Okay, well, now you're the same person at 30. It's like people aren't so thrilled about you at that point. It's like, what the hell have you been doing for the last 10 years? Well, I'm just as clueless as I was when I was 22. It's, yeah, but you're not 22. You're an old infant, right? And that's an ugly thing, an old infant. So part of the reason you choose your damn sacrifice, because the sacrifice is inevitable, but at least you get to choose it. And then there's something that's even more complex than that in some sense, is that इसकी ज़रूरत है यार हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, इस इन्फॉर्मेशन की, इस अवेयरनेस की। और मैं अगेन जब मैं कह रहा हूँ हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो ये नहीं मैं कह रहा कि हर कोई ऐसा है, इतनी सिंपलिस्टिक बात नहीं होती, न्यूएंसेस होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम प्रेवलेंट है हमारे वहाँ, ये मेरा कहने का मतलब है। The problem with being a child is that all you are is potential, and it's really low resolution. You could be anything, but you're not anything. So then you go and you adopt an apprenticeship, roughly speaking, and then you become something. And when you're something, that makes the world open up to you again. Like if you're a really good plumber, then you end up being far more than a plumber, right? You end up being a good employer. Not that plumbers, I'm not putting plumbers down. It's like more power to plumbers. They've saved more lives than doctors. Exactly. So
एक हमारी सोसाइटी की दूसरी प्रॉब्लम, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, इन लोगों को हम देखते हैं एक लो लाइट में, ट्रक ड्राइवर्स, इनको हम देखते हैं एक ऐसे जैसे कि ये सोसाइटी का गंदे वाला हिस्सा है, ये सोसाइटी का निचला मैला कुचैला वाला हिस्सा है, जबकि एक्चुअल में सोसाइटी को वही लोग रन कर रहे होते हैं। एक दिन अगर सारे ट्रक वाले और प्लम्बर छोड़ो, सिर्फ प्लम्बर अगर हड़ताल कर दें, जीना मुश्किल हो जाएगा। सफाई कर्मचारी हड़ताल कर दें, जीना मुश्किल हो जाएगा। उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो देनी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। Hygiene, right? So, you know, if you're a really good plumber, well, then you have some employees, you run a business, you train some other people, you enlarge their lives, you're kind of a pillar of the community, you have your family. You can, once you pass through that narrow training period, which narrows you and constricts you. अरे यार साला बेस्ट गाड़ी बैन करो। You and develops you at the same time, then you can come out the other end with a bunch of new possibility at hand. And Jung talked about that. He thought that the proper part of the proper path of development in the last half of life was to rediscover the child that you left behind as you were apprenticing. ओके, कार्ल यूंग एक स्विस फिलोसोफर थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज इंडियन फिलोसफी से उठाई थी अपनी, पर उसे कभी भी प्रॉपरली क्रेडिट नहीं किया जैसा कि इन्हें करना चाहिए था। वो मुझे भी इनका एक थोड़ा डार्क या नेगेटिव पार्ट लगता है, बट हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर कमी और बुरी चीज़ें हैं। बट इन्होंने एक बहुत जिसे कहते हैं कि ये प्रोटेजे थे बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड के, और इन्होंने काफ़ी अच्छी थ्योरीज दी हैं दुनिया को, चाहे वो उन्होंने प्लेजराइज भी की हो उसमें से काफ़ी सारी जो इंडियन फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके थ्रू, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने उसको स्प्रेड किया है। अगर साइटेशन भी दे देते कि कहाँ से उठाया था तो और ज़्यादा अच्छा होता। So then you get to be something and regain that potential at the same time. Very, very smart. Well, he was very, very smart. So that's very wise thing to know. Sacrifice. You get to pick your damn sacrifice. That's all. You don't get to not make one. You're sacrificial whether you want to be or not. That's a good thing to know as well. Yeah. ओके, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, परस्यू अ नोबल एम। या मैन, हमारे यहाँ, मैं तो अपने सोसाइटी के हिसाब से इस चीज़ों को रख के देखूँगा ना, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे अपने आसपास के नेबरहुड में या कहीं पे भी, जो आपको अक्सर, जिनके बारे में आप सोचोगे यार ये बंदा करता क्या है, ये हमेशा इधर ही बैठा रहता है। चौक होगा, कोई पान की दुकान होगी या कुछ भी इस तरीके का एरिया जहाँ पे मार्केट है, आपको पता नहीं चल रहा कि यार उस बंदे की इनकम कहाँ से आ रही है, या फिर अगर आ भी रही है तो ये बंदा हमेशा वेला ही क्यों रहता है, वेला मतलब खाली क्यों बैठा रहता है। तो आई थिंक हम में से हर किसी के नेबरहुड में ऐसे लोग होते होंगे, और सिर्फ वो ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग जो जॉब्स भी कर रहे हैं, वो बस काम कर रहे हैं, जिए जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, खाना खा के सो जा रहे हैं। कोई एम नहीं है लाइफ का, लाइफ को सिर्फ जिए जा रहे हैं एक गाय की तरह या फिर एक किसी भी और जानवर की तरह। तो और आई थिंक जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम सब की जैसे कि कहते हैं कि जब आप छोटे होते बच्चे होते तो सिर्फ पोटेंशियल होते हो, हम सब के एक बहुत बड़े बड़े गोल होते हैं कि मैं ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या जो भी बनूंगा, ठीक है, हीरो बनूंगा, एक्टर। तो वो एक एम होता है हमारा एज ए किड, ठीक है, जादूगर बनूंगा। लेकिन हम फिर उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं दुनिया की रियलिटी को सीखते सीखते। तो एक नोबल एम जो है, वो नोबल एम चाहे ये नहीं हो सकता कि कुछ बनना ही, वो ये भी हो सकता है कि यार जब मेरे पास इतनी कैपेसिटी आ जाएगी तो मैं एटलीस्ट इस बात की कोशिश करूँगा कि मैं 5 लोगों को जिनके पास फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है उनको खाना खिलाऊँ, ठीक है, या फिर मैं एक प्याऊ बनाऊँगा। प्याऊ मतलब जहाँ से लोगों को पीने का पानी मिल सके। ये भी बहुत नोबल एम है। आप सिर्फ काम एक डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे हो। इस एम के साथ अगर इस चीज़ को अगर हम ला सकें तो मेंटल हेल्थ में इतना ज़्यादा लोगों की बेहतरी आ सकती है। बहुत सारी
मेंटल हेल्थ के इश्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में जब हम बिना किसी गोल के जी रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं. हमारे हमारे कभी कभार जब हम अकेले में या प्रॉब्लमैटिक किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमें लगता है कि यार लाइफ की वैल्यू ही क्या है. एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ जी तो रहे हैं, टाइम ही तो खा रहे हैं. तो ये चीज़ है, एम आपको उस चीज़ से बचाता है. Dostoevsky said that in Notes from the Underground, a great book. He said, I loved this. It was his an early criticism of the notion of a political utopia. He said, ज़िंदगी के बारे में जानने की अगर दो कौड़ी का भी सोच है तो दोस्टोयेव्स्की की एक आधा ही बुक प्लीज़ पढ़ लेना. अमेजिंग भाई, प्रॉफिट के लेवल की रिस्पेक्ट. look, if you gave people everything they wanted, they had nothing to eat but cake, and nothing to do but sit in warm pools and busy themselves with the continuation of the species. That was his lines. That the first thing they would do, well, maybe after the first week, was like go kind of half insane and smash everything up just so that something that they didn't expect would happen, so that they'd have something interesting to do. And it's so right, because आपकी नज़र में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसको आपको करके मज़ा आ जाएगा ना, ह्यूमन नेचर की प्रॉब्लम यही है कि अगर उसको भी आप 500 बार कर लोगे लगातार तो उससे भी बोर हो जाओगे. एग्जांपल देके बताता हूँ. कोई गाना आपको बहुत पसंद है, आप उसको लगातार लूप पे लगा के सुने जा रहे हो. 1 महीने तक सुन लोगे, 2 महीने तक सुन लोगे, 3 महीने बाद नहीं सुन पाओगे. और जबकि म्यूज़िक एक बहुत डीप प्लेजर है. डीप प्लेजर से मेरा कहना है कि डीप थिंग है जो कि सिर्फ प्लेजर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सोल को भी टच करता है. और मैं वो उसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ. हम बोर हो जाते हैं. If you just had all the material stuff you wanted, that you'd be, well, what would you be? What would you do? Would you just sit on the couch and watch TV? You'd be, I don't know what, you'd be cutting yourself just for entertainment in no time flat, and that's the sort of thing that people do. So we're not adapted for security and utopia. We're adapted for a certain amount of security because, we are vulnerable, but mostly we want to have one foot out where we don't know what the hell is going on, because that's where you're alert and alive and tense and with इसको it. कहते हैं chaos and order के बीच का बैलेंस, जो कि of course एक बहुत क्या कहते हैं पेट टॉपिक है पीटरसन का. I believe this, and I believe it actually has something to do with the hemispheric structure of the physiology of your brain, is because the right hemisphere looks roughly adapted to what you don't know, and the left hemisphere, this is an oversimplification, but a useful one, is adapted to the world that you do know, and the right place for you to be is halfway between them, because and you can tell that's what's so cool, and this tells you that this is actually reality that's manifesting itself to you. That sense of active engagement you have in the world when things are working well for you, where you should be at the right time. You're alert and on top of things and engaged, and you don't have much of a sense of time, and the sense of the tragedy of life sort of recedes, and that's when you've got one foot where it's secure and one foot out in the unknown, and your brain signals to you that you're in the right place by making what you're doing meaningful. And that sense of meaning is actually a neurophysiological signal that you've got the forces of the cosmos properly balanced in your being at that moment. And that's why it feels so good. And then, well, what else could it possibly be? Our brain is capable of looking beyond our vision. That's what it's for. And that sense of engagement, there's no reason to assume that that's anything but a real signal. And you can reduce it. You could say, well, the problem with being where know only is that you don't know everything, and that's going to be a problem in the future. And the problem with being where you know nothing is that's just too much, man. You go into panic mode because anything can happen there and you can't handle it. So you got to mediate between those two things. You want to be secure enough so that your physiology isn't revving out of control, and you want to be out there in the unknown enough so that you keep updating yourself constantly. And that's the place where information flow is maximized. इसका मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देके हम लोगों की एवरीडे लाइफ का बताया था. मान लो आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो
जो आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम में, बस आपको कर क्योंकि आपको पैसे चाहिए, अपने आप को सस्टेन करना है इसलिए जॉब कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई पैशन भी था, या कुछ आप चाहते थे एज ए किड जो कि करना अपने लाइक कोई प्रोजेक्ट, कोई पेट प्रोजेक्ट या कुछ भी। तो जो आपकी जॉब है वो ऑर्डर है आपकी लाइफ का, क्योंकि वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रहा है। पर क्योंकि आपके माइंड को स्टिमुलेशन भी चाहिए, आपकी सोल को फुलफिलमेंट भी चाहिए, तो आप वो चीज़ जो आप करना चाहते थे, वो कुछ भी हो सकता है, बी पालना, लाइक प्रॉपर्टी डिज़ाइन करना, कुछ भी, अपना थोड़ा सा टाइम भी अगर उसको रेगुलर देते हो और उसको पूरे फ़न के साथ, सिर्फ फ़न के लिए, सिर्फ अपनी पर्सनल मेंटल ग्रोथ के लिए करते हो, तो आपकी लाइफ एक बैलेंस बनेगी। आप वो भी कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, और आप वो भी प्रोवाइड कर पा रहे हो जो सस्टेनेंस आपकी और आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस में कर रहे हो, तो ये चीज़ होगी जो ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड भी होगे इस साइड से, और उस साइड से सिक्योर भी होगे। And you know that because that's where you are when you're having a really interesting conversation with someone, or you're gripped by a book, or you're really into a movie, or maybe something that you do as apart from your work, or maybe even in your work, you're into it. And that's because you are in the right place at the right time, and your whole nervous system is signaling that to you. And I would say that's the sort of place that you should be all the time. Of course, you can't be because no one's perfect, but that's the recreation of paradise on earth. It's something like it because you are in the right place at the right time when that is happening. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो परफेक्ट बैलेंस कभी अचीव नहीं होगा, बट लाइफ एक्चुअली वो कोशिश ही है कि कंटिन्यूस कोशिश की वो बैलेंस बना रहे। So we're mobile creatures, right? We need to know where we're going because all we're ever concerned about, roughly speaking, is where we're going. That's what we need to know. Where are we going? What are we doing and why? Yeah. It turns out that the way that we're constructed neurophysiologically is that we don't experience any positive emotion unless we have an aim and we can see ourselves progressing towards that aim. It isn't precisely attaining the aim that makes us happy. Progress. As you all know, if you've ever attained anything, because as soon as you attain it, then the whole little game ends. Then you have to come up with another game. Yes. Right? So it's ये बहुत सही चीज़ है। हमें कंटिन्यूसली ये पता होना चाहिए। हम अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं यार फ्यूचर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। हमारा मेंटल वायरिंग ही कुछ इस तरीके का है कि हम सोचते ही रहते हैं कि हम किधर को जा रहे हैं। और जब हम पास्ट में भी सोच रहे होते हैं ना, कुछ लोगों की यार आप पास्ट में ही जीते रहते हो, वो पास्ट में भी यही सोच रहे होते हैं कि अगर वो कोई चीज़ एक डिफरेंट तरीके से हुई होती, जैसे मान लो किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और वो उसके बारे में सोचता रहता है, तो वो ये नहीं सोच रहा कि पास्ट में कितना था, वो ही उसका वो नहीं है। उसकी सोच के पीछे की जो नेक्स्ट लेयर होती है वो ये होती है कि अगर वो मेरे साथ होती तो आज कितना अच्छा होता और आगे कितना अच्छा होता। एक्चुअल में हम तब भी पास्ट के थ्रू भी फ्यूचर का ही सोच रहे होते हैं, एक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर का। अबे यार बता लो भाई, रेस ट्रैक ही है मेरे घर के, बना रखा है इन्होंने। एनीवे, यस, हम पॉजिटिव इमोशन जो ये कह रहे हैं कि गोल से होता है, यस, अगर आप एक गोल सेट करोगे और उसको उस पे हर अगला स्टेप जब आप प्रोग्रेस का उठाओगे, वो पॉजिटिव इमोशन लेके आएगा। सिंपल बात। That's okay, but it does show that the attainment can't be the thing that drives you because it collapses the game. That's what happens when you graduate from university. It's like you're king of the mountain for one day, and then you're like surf at Starbucks for the next 5 years. यार क्या हो रहा है यार? Shit man, sorry यार। So what happened for the next 5 years, so आप पीछे चलते हैं। Surf at Starbucks for the next 5 years, so अच्छा, इन्होंने कहा कि आपने कॉलेज ग्रेजुएट कर लिया और फिर आप किंग ऑफ द वर्ल्ड हो, और लेकिन फिर सिर्फ एक दिन के लिए, और नेक्स्ट पाँच साल आपको स्टारबक्स में कॉफ़ी सर्व करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इन्होंने अंडर हैंड भी मार दिया उन करंट कॉलेज डिग्रीज़ के वैल्यूलेस होने का जो आइडिया है उसके थ्रू।
So what happens is that human beings are weird creatures because we're much more activated by having an aim and moving towards it than we are by attainment. And what that means is you have to have an aim, and that means you have to have an interpretation. And it also means that the nobler the aim, that's one way of thinking about it, the better your life. And that's a really interesting thing to know because, you've heard ever since you were tiny that you should act like a good person. You shouldn't lie, for example. And you might think, well, why the hell should I act like a good person and why not lie? I mean, even a 3-year-old can ask that question because smart kids learn to lie earlier, by the way. And they think, well, why not twist the fabric of reality so that it serves your specific Purpose. short-term needs? I mean, that's a great question. Why not do that? Why act morally? If you can get away with something and it brings you closer to something you want, well, Pinocchio. why not do it? यहाँ पे मुझे ना वाई नॉट लाई ये एक लुई सीके का जोक है बहुत सही, जिसमें वो कहता है कि लाइंग सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। हालांकि वो सही नहीं है लेकिन जोक बढ़िया है वो। मैं लुई सीके का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई थिंक मेरा मोस्ट फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन लुई सीके है, तो इसलिए मुझे उसके जोक्स याद आ जाते हैं अक्सर। These are good questions. It's not self-evident. Well, it seems to me tied in with what I just mentioned. It's like you destabilize yourself and things become chaotic. That's not good. And if you don't have a noble aim, then you have nothing but shallow, trivial pleasures, and they don't sustain you. And that's not good because life is so difficult, it's so much suffering, it's so complex. It ends and everyone dies and it's painful. It's like without a noble aim, how can you withstand any of that? Yeah. You can't. You become desperate, and once you become desperate, things go from bad to worse very rapidly when you become desperate. And so there's the idea of the noble aim, and it's not something. It's something that's necessary. It's the bread that people cannot live without, right? It's not physical bread. It's the noble aim. And what is that? Well, it's to pay attention. It's to speak properly. It's to confront chaos. It's to make a better world. ये चीज़ है यार। इन्होंने कहा कि लाइफ की एग्जिस्टेंस का कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनता जितनी ज़्यादा सफरिंग इसमें एग्जिस्ट करती है उसकी वजह से। तो इस कंक्लूजन के बाद अगर आप कह सकते हो कि तो क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लाइफ की वैल्यू है भी, तो वो चीज़ एक नोबल एम ही हो सकती है। एक ऐसा एम जो वर्थ लिविंग प्रूव करे। सोचना इस बारे में, थोड़ी गहरी बात है, इसको सोचना। Something like that. And that's enough of a noble aim so that you can stand up without, cringing at the very thought of your own existence, so that you could do something that's worthwhile to justify your wretched position on the planet. And whatever it is that is you has this capacity to experience reality and to transform it, which is a very strange thing. You can conceptualize a future in your imagination, and then you can work and make that manifest. You participate in the process of creation. That's an amazing idea because it gives consciousness a constitutive role in the cosmos. इस पूरी एग्जिस्टेंस में अगर आप एक नोबल एम को लेके आगे बढ़ते हो तो आपका एक बहुत ही माइन्यूट मिनिस्क्यूल बैक्टीरिया साइज का ही कोई कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो वो आपने लाइफ साइकिल दिखाया था कि सो के उठे, काम पे गए, घर आए, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए, फिर सेम साइकिल रिपीट। तो आपकी एग्जिस्टेंस थी या नहीं थी इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये चीज़ की बात हो रही है। ओके, थर्ड रूल, फेस, हम कल देखेंगे। आज काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जॉन पीटरसन को सुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुझे थोड़ी सी रिवाइटलाइजेशन का एहसास होता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ लाइफ में और मुझे यही करना चाहिए। वैल्यू की रियलाइजेशन और एग्जिस्टेंस का मीनिंग बार बार रिफ़्रेश हो जाता है मेरे माइंड में। तो एनीवेज, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। आज के लिए इतना ही देखने के लिए थैंक यू।